तो सबसे पहले इस ट्रैवल एजेंट को टेस्ट करते हैं. लेट मी कॉल. Hello there. This is Mike, your personalized travel planner. Where would you like to go today? Hey Mike, I'd like to go to Dubai. Dubai sounds like an amazing destination. Let's get the details sorted out so we can plan your perfect trip. First, could you please tell me your origin city or location? I'm traveling from Delhi. Great. Traveling from Delhi to Dubai. Now, could you please provide the departure date for your trip? I'd be going by 27th of June and will be returning by 4th of July. Thank you for sharing the dates. To confirm, your departure date is June 2027 and you'll be returning on July 4th. Is that correct? It's June 27th. Thank you for clarifying. So your departure date is June 27th and your return date is July 4th. That's correct. Next, thank you. How many travelers will be joining this trip? I'll be traveling. I myself will be traveling. Understood. So it's one traveler. Could you please let me know your preferred activities during the trip? Yeah, like I'd like to visit some like places like Burj Khalifa or maybe Dubai Mall. Got it. You'd like to visit Burj Khalifa and Dubai Mall. Those are fantastic places to explore. That's great. Could you please share your email address so I can send you detailed information about your trip? It's arora.paras@gmail.com. Thank you for providing your email address. Just to confirm the details, origin city, Delhi, destination, Dubai, departure date, June 27th, return date, July 4th, number of travelers, 1, preferred activities, visit Burj Khalifa, Dubai Mall, email address, aurora.paras@gmail.com. Does everything look correct? Yeah, that's correct. Perfect. I'll proceed with planning your trip and send the details to your email shortly. Give me a moment. Hold on a sec. Your trip details have been successfully planned. You should receive an email with all the information shortly. Would you like to book a meeting with one of our sales agents to finalize your plans and discuss any further I'll details? just look at the plan and then I'll try to contact your travel agent. Sure thing. Please review the plan sent to your email. And whenever you're ready, feel free to contact our travel agent. If you need any further assistance or have any more questions, don't hesitate to reach out. Have a wonderful time planning your trip to Dubai and safe travels. Thank you so much, Mike. You're very welcome. Enjoy your trip to Dubai. And if you need any further assistance, I'm always here to help. Have a fantastic day. तो ये था एक ट्रैवल एजेंट जिसने मेरी सारी की सारी डिटेल्स मुझसे ली एंड मेरे लिए कस्टमाइज्ड प्लान इसने मेरे ईमेल पे भेज दिया एंड उसके नीचे सेल्स एजेंट का नंबर भी दिया सो दैट अगर फ्यूचर में मुझे बुकिंग करनी है तो मैं डायरेक्ट उनके एजेंट को कांटेक्ट करूं. एंड गेस व्हाट, ये एक ह्यूमन एजेंट नहीं था, ये एक एआई ट्रैवल एजेंट था. तो हम बहुत टाइम से एआई को एक्सप्लोर कर रहे हैं. मैंने आपको सिंपल एजेंट्स बनाने सिखाया कि एजेंटिक फ्रेमवर्क एक्चुअली में है क्या एंड दिस इज श्योरली द नेक्स्ट बिग थिंग. और मैंने आज एक डेमो दिया एक वॉइस एजेंट का आज, और मैं आज आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भी कि आप ये वॉइस एजेंट्स खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो. मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के लिए क्रिएट किया बट आपका यूज केस कोई भी हो सकता है और आप एक एआई वॉइस एजेंट अपने बिजनेस के लिए भी बना सकते हो. तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द एजेंट. तो अब देखते हैं हम कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल एजेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसमें मैं दो चीजें यूज कर रहा हूँ, एक N8N वर्कफ्लो और एक वापी जो हमारा वॉइस एजेंट बना. पहले हम N8N वर्कफ्लो समझेंगे और उसको हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. यार आप टेलीग्राम से कनेक्ट कर दो, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दो, आप एक वॉइस एजेंट से कनेक्ट कर दो जो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो, जैसे हमने ट्यूटोरियल में देखा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आ गए हम N8N वर्कफ्लो में और वहाँ पे अब सबसे पहले हम वेबहुक ऐड कर लेते हैं. वेबहुक बिकॉज वही हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट में ऐड करेंगे बिकॉज वही हमारा एक्सेप्ट करेगा जो वैपी के थ्रू हम जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो अब हमने वेबहुक ऐड कर लिया. तो नेक्स्ट नोड हम ऐड करेंगे दैट इज एडिट फील्ड्स, क्योंकि हमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए वो हम फील्ड्स यहाँ पे ले लेंगे इनपुट. क्योंकि अब जैसे हम ट्रैवल एजेंट बना रहे हैं तो हमारे को क्या क्या चाहिए होगा कि कहाँ से चल रहा है, ओरिजिन जो भी नॉर्मल बात करेंगे कि ओरिजिन सिटी क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, देन हमारा डिपार्चर डेट क्या है, जो भी एक नॉर्मल इनपुट चाहिए होते हैं. नेक्स्ट सारे स्ट्रिंग्स टाइप हैं तो स्ट्रिंग ही डालेंगे एंड देन की अराइवल डेट हमारी क्या होगी, हमें एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करनी है वहाँ पे. देन हम ईमेल एड्रेस जो कस्टमर का चाहिए, तो ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डिपार्चर डेट, अराइवल डेट और एक्टिविटीज और ईमेल. तो ये हमारी सारी फील्ड्स है जो वेबहुक एक्सेप्ट करेगा और इस फील्ड्स में डाल देगा. इनको हम नाम डाल देते हैं इनपुट फील्ड्स कर देते हैं हम इनको बस, या इनपुट लिख देते हैं खाली. देन नेक्स्ट नोड हम जो अटैच करेंगे वो है भाई
अब ये कहाँ जाना चाहिए, ये हमारा एक जाएगा कि जहाँ से वो एयरपोर्ट कोड उठाएगा। तो एयरपोर्ट कोड एंड डेट्स देने के लिए हम एक बेसिक LLM चेन यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर हमें वो प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो वो प्रॉम्प्ट मेरे पास पहले से ही सेव्ड है, तो ये मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है, जो LLM चेन प्रॉम्प्ट है, जो हमें यहाँ पे हमारे को उसका एयरपोर्ट कोड देगा, तो बस तभी वो सर्च कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, ओरिजिन, जो भी हमारे सारे इनपुट नोड्स हैं वो सारे डाल देंगे, और डेस्टिनेशन, डिपार्चर, देन अराइवल और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जितने मुझे चाहिए होंगे। और यहाँ पे हम बेसिक एक मॉडल लगा लेंगे, ओपन राउट चार्ट मॉडल लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा कम वो लेता है, मतलब हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो कम यूज़ होंगे, बिकॉज हमें बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे। और ये फिर हम पूरा का पूरा आउटपुट पार्सर उठा लेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैं सारे की सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज ये हमें कैसे स्ट्रक्चर्ड में आउटपुट चाहिए वो सारी स्ट्रक्चर देगा। तो ये फॉर्मेट मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए वही फॉर्मेट, ताकि मैं आगे इनपुट कर सकूँ। तो ये हमारा इनपुट ये हो गया। नेक्स्ट इज हम HTTP रिक्वेस्ट डालेंगे, बिकॉज हमें ये सारी चीज़ें सर्च करना है। तो उसके लिए भाई हम चले जाएंगे सर्प API पे। गूगल सर्प API आप टाइप करोगे, ये मैंने पहले भी बताया था। सर्प API आप ले लोगे तो वहाँ से लॉग इन कर लेना, रजिस्टर कर लेना, नॉर्मली ये सर्प API मिल जाएगी। तो ये हमारी गूगल सर्च API है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं भाई। ये किसी को सीखना हो तो मुझे बता देना। तो serpapi.com सर्च कॉपर, ये गेट रिक्वेस्ट है, सब कुछ लिखा है, सिंपल वैसे के वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर हम इसके पैरामीटर सेट करेंगे, उसको जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप हम यहाँ पे क्वेरी ऑथ में टाइप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसमें हम हेडर पैरामीटर्स डालेंगे, इसके नेम इसका क्यू है और वैल्यू इसकी है, जो हम जो भी इसका नाम देंगे वो है एक्टिविटीज़, कि हमें पहले हम एक्टिविटीज़ देख लेंगे। तो एक्टिविटीज़ इन दैट पर्टिकुलर सिटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो HTTP रिक्वेस्ट का नाम हम एक्टिविटीज़ दे देते हैं। नेक्स्ट हमें जो दूसरा वो चाहिए, दैट इज़ एक और HTTP रिक्वेस्ट है। मुझे पहले एक्टिविटीज़ लेनी है, देन मुझे फ़्लाइट्स की डिटेल्स चाहिए, और देन मुझे होटल्स की डिटेल्स चाहिए। तो मैं गूगल फ्लाइट API पे चला जाऊँगा, और इसमें भी हम एंड पॉइंट सर्च कर लेंगे, जहाँ पे भी जाके इसको सर्च करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सीधा गूगल सर्च वाला ही जो उसके अंदर है वो भी सेम ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गूगल फ्लाइट भी वहीं से ही लेता है। और इसमें क्वेरी ऑथ लेंगे हम, एंड यहाँ पे हम हेडर पैरामीटर्स डाल देंगे। तो नेम में डालेंगे हम इंजन, और वैल्यू में डाल देंगे हम Google_flights, ठीक है। तो गूगल फ्लाइट्स इंजन को और पैरामीटर को ऐड कर देंगे, और इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इनपुट चाहिए। सबसे पहले आउटबाउंड डेट चाहिए मुझे, देन मुझे सेकंड चीज़ है भाई रिटर्न डेट चाहिए। रिटर्न डेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। देन मुझे ट्रैवल क्लास, वो ऑप्शनल है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स चाहिए, तो कितने हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, उसी हिसाब से HTTP रिक्वेस्ट को बना लेंगे जिस हिसाब से हमें जिस डिटेल में हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम फ्लाइट्स को चेंज कर देंगे इसको। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम और एनहांस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कैसा चाहिए। नेक्स्ट फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए, होटल्स चाहिए। यहाँ पे तो मैं HTTP रिक्वेस्ट सर्च कर, तो HTTP रिक्वेस्ट सर्च कर लूँगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर भी भाई सेम वही सर्प API को यूज़ करके हम जो गूगल होटल्स पे चले जाएंगे। तो वही मेन चीज़ है, वही सर्च ही डालना है मुझे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, अगर मैं पूरा इंजन होटल्स डाल दूंगा तो भी सही है, नहीं तो यहाँ सर्च तक यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद इसमें क्रेडेंशियल्स टाइप सेलेक्ट कर लूँगा, क्वेरी ऑथ, और उसके अंदर मैं अपनी चीज़ें ऐड कर दूँगा हेडर में। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे जो हमारा इंजन है, नेम इंजन डाल देंगे, और वैल्यू जो है वो Google_hotels कर दो। ये उसी लिए पूरा का पूरा सर्च भी डाल दो, नहीं तो चेंज कर दो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। फिर इसके अंदर नेम क्यों डालना है, और वैल्यू जो हमें डालनी है कि जो चीज़ें हमें चाहिए, एक चेक इन डेट चाहिए, जो भी चाहिए होता है इसके लिए। तो चेक इन डेट एज एन इनपुट पैरामीटर लेंगे। फिर चेकआउट डेट भी चाहिए होगी हमें, तो चेकआउट डेट भी लेंगे ऐसे ही। देन कितने नंबर ऑफ़ पीपल है वो भी हमें चाहिए होगा। और इसको हम और भी चीज़ पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन वो और ज़्यादा पूछे तो और ज़्यादा पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको अपने आप से मोल्ड कर सकते हो। तो इसको नाम चेंज कर लूँगा होटल्स, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नोड बन गया। यही करना था बस हमें। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम इसके अंदर एक भाई अब लगा देंगे अपना AI एजेंट, जो एजेंट इसको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से काम करके देगा। तो इसको मैं एक ईमेल एजेंट बनाता हूँ। ये वॉइस में भी जवाब दे सकता है, ईमेल में भी दे सकता है। हम ईमेल में दे देंगे कि कस्टमर के ईमेल आईडी पे सारा कुछ चला जाए। अब मैं ये, क्योंकि प्रॉम्प्ट इसका जो भी मैसेज है मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मुझे देनी है इसमें, क्या क्या सारी चीज़ें, किस तरीके से वो ईमेल ड्राफ्ट करेगा, ये पूरा का पूरा सब चीज़ें बता देगा। ये मतलब ईमेल ऐसे करके बनाएगा,
ये पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें इनपुट लेगा और उसके हिसाब से वो आंसर दे देगा। एंड फिर मैं इसकी एक क्या कहते हैं इसको सिस्टम मैसेज डाल दूंगा इसके अंदर, दैट इज़ इसका मतलब इसकी प्रॉम्प्टिंग कर दूंगा। वो प्रॉम्प्ट भी हमारे पास पूरा का पूरा कॉपीड है, तो उसको वो प्रॉम्प्ट भी हमारे पास पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये है कि एक्सपर्ट ईमेल राइटर है, किस तरीके का ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब ये किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। अब मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या सारी फ्लाइट्स और ये सब सेक्शन हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट करके डाल दी। अब इसके अंदर जो चैट मॉडल है वो हम ओपन राउट को यूज़ कर लेंगे या फिर चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चलेंगे। नेक्स्ट इसको टूल्स क्या देने हैं हमें। टूल्स हमें इसको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर है, तो जो ईमेल एंड सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिख के देगा, तो इसका भी हमारे पास पूरा का पूरा भाई कैसे आउटपुट पार्सर का चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें भी हमने लिख रखी है अपने पास, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे और फॉलो कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मुझे क्योंकि मेल करना है तो मैं जीमेल की एक नोड ले लूँगा और उसको जीमेल को लॉगिन कर लूँगा। सेंड अ मैसेज है तो सेंड अ मैसेज सेलेक्ट कर लूँगा। जीमेल अकाउंट है, अब जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे वो डाल देगा। ये 2 के अंदर हम वो एक्सप्रेशन वो चीज़ ले लेंगे और मैसेज में इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन एक रिस्पॉन्स टू वेबहुक कर लेते हैं कि ताकि उस वेबहुक को रिस्पॉन्स भी चले। तो ये पूरा का पूरा भाई हमारा N8N वर्कफ्लो हो गया जो हमें बनाना है। वेबहुक से इनपुट लिया जो वेपी से आएगा और वहाँ इनपुट फील्ड्स ले लेगा। ये सारी इनपुट फील्ड्स आ जाएंगी यहाँ पे। एंड देन उसको एक फील्ड रह गई थी यार हमारी कि नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स हमें चाहिए थे, तो नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और भी बहुत सारी फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। जो जो इनपुट आपको चाहिए होगा, जितना डीप इनपुट चाहिए होगा उतना बेटर है। और इसको मैं एआई मॉडल से रिप्लेस कर दूंगा। जो भी आपको मतलब करना है, चैट जीपीटी 4o मिनी यूज़ कर लोगे चल जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे भाई वापी में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट असिस्टेंट करना है। असिस्टेंट का अपना नाम दे देना है जो भी आपको चाहिए। मान लो हमने इसका नाम माइक दे दिया, ठीक है। इसको क्रिएट असिस्टेंट कर दो। हर एक चीज़ सारा गेम जो है वो प्रॉम्प्टिंग पे ही है। ओपन एआई मॉडल यूज़ करेगा, कुछ ज़्यादा छेड़ना नहीं है यहाँ पे। और ये इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अब फर्स्ट मैसेज इसका क्या है, हेलो देयर आई एम, जो भी आपको लिखना चाहते हो, और भाई क्या हाल चाल है तो वो भी लिख सकते हो। हेलो देयर दिस इज माइक, योर पर्सनलाइज्ड ट्रैवल प्लानर। तो मतलब पर्सनलाइज्ड ट्रैवल प्लानर बिकॉज हम ट्रैवल कंसल्टेंट बना रहे हैं उसको। वेयर वुड यू लाइक टू गो टुडे, कुछ भी लिख सकते हो। जो भी इंट्रो मैसेज आपको देना है, जिस हिसाब से आप चाहते हो कि वो इंट्रो दे, उसी हिसाब से आप कर सकते हो। मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारे पास ये पूरा का पूरा ये भी भाई हमने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भाई मेहनत करके बनी हुई हैं। तो ये सारी की इसको पूरी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। मतलब ये एक प्रॉम्प्ट लिखने का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। वैसा ही आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ही आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट्स उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको पब्लिश दबा दिया। अब इसके अंदर हमें क्योंकि उस N8N वर्कफ्लो को भी कनेक्ट करना है, तो टूल्स के अंदर जाऊँगा और सेलेक्ट टूल्स में हम एक एजेंटिक मतलब ये बना रखा है, तो एजेंट है हमारे हमने, तो एजेंट हम यूज़ कर लेंगे और एक नया टूल क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा हमारा फंक्शन। कोई भी न्यू फंक्शन क्रिएट करके इसका नाम कुछ भी दे देंगे, जैसे ट्रैवल दे देते हैं। तो मैंने ट्रैवल बना दिया है यहाँ पे और इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कि ये ट्रैवल एजेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, ये अपने लिए होता है। अब इसके अंदर हम क्या नेम डाल देंगे कि क्या चाहिए इसको, तो ओरिजिन चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, मतलब ये इसको बता देंगे हम इसको क्या क्या इनपुट लेना है यहाँ से, तभी तो वो वहाँ पे देगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे नेम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बट लेकिन वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिपार्चर डेट, तो सारी फील्ड्स यहाँ पे इनपुट कर देंगे हम। नेक्स्ट अराइवल डेट, कहाँ पे जाना है, जितनी भी फील्ड्स आपको चाहिए आप अपने बिजनेस के हिसाब से देख सकते हो। मैं बिकॉज मुझे ट्रैवल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से हमने ऐड कर दिया। देन हमें चाहिए कि नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स कितने होने चाहिए और उनका एक ईमेल भी तो चाहिए, तो ईमेल भी हमें चाहिए। तो ये हमारे सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, राइट। तो ये बिकॉज यहाँ पे इनपुट फील्ड्स में हमें जो चाहिए ये सारी की सारी हमने वही सेम पैरामीटर्स यहाँ पे डाल रखे हैं, वही सेम पैरामीटर्स वहाँ पे, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हमें और कोई भी एक रह गया शायद, हम एक्टिविटीज़ रह गया, हमें एक्टिविटीज़ भी लिखनी है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए। अब इसमें सर्वर URL में हम अपना जो भी एजेंट है उसका URL डाल देंगे। आप इसका प्रोडक्शन URL भी है, टेस्ट URL, पहले टेस्ट URL पे टेस्ट कर, तो टेस्ट URL हमने पेस्ट कर। तो यहाँ पे यूर ट्रैवल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट टू योर, तो ये जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट है वह योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पे हम अपना जो भी एजेंसी का नाम वो भी डाल सकते हैं, आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है तो उसके हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा
फ्रंट एंड क्रिएट हो गया, मतलब जो हमारा फ़ोन पे बात करेगा वो सारे की सारी चीज़ करी थी। आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो टॉक टू असिस्टेंट करके, और इसके अंदर ट्रैवल मैंने अटैच कर दिया और इसको पब्लिश कर दिया। टॉक टू असिस्टेंट करके आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो और इसको किसी फ़ोन नंबर से अटैच भी कर सकते हो। अब हमें इसकी थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें और कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ना इसमें, ठीक है। छेड़ने को आप बहुत कुछ छेड़ सकते हो, अलग अलग फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फ्लो है, इसको मैंने वो कर दिया। ये हमारा वॉइस एजेंट है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो यही है भाई हमारा पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है ये क्रिएट हो गया, N8N वर्क फ्लो, और हमारा फ्रंट एंड भी क्रिएट हो गया। अब इसको आपस में हम वेबबुक से हमने जोड़ भी दिया, जैसे मैंने आपको इसका वो दिखाया टेस्ट करके, वो मैंने पूरा का पूरा टेस्टिंग आपको दिखा दी है। इसी तरीके से करना है। बाकी डिटेल्ड गाइड चाहिए कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जस्ट लुकिंग एट दिस एजेंटिक फ्रेमवर्क और कैसे एजेंट्स आगे ह्यूमन का काम बहुत आसान कर सकते हैं और बहुत ह्यूमंस को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये क्लैरिटी आपको आ रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब इन वॉइस एआई एजेंट्स के बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं और इनको क्रिएट करना बहुत ईजी है भाई। खुद से आप अगर 1-2 घंटे लगा दोगे और जो मैंने ट्यूटोरियल सिखाया उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप खुद का भी एक वॉइस एजेंट बना सकते हो। और अगर इस वॉइस एजेंट की पूरी डिटेल्ड गाइड चाहिए कि किस तरीके से मैंने क्रिएट किया, तो नीचे कमेंट करो वॉइस एजेंट, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइड दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपके पास जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है वो आएगी। आप लोग फ्यूचर में और कैसी ऑटोमेशंस मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वो बिल्ड करूं, और ये वीडियो कैसा लगा, इंसाइटफुल था या नहीं था, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके कमेंट्स ही मेरे को अगला कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।